کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتاریوں سے ہمیں روک لیں گے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتار کر کے ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا دیں گے؟ انہوں نے شیر کی کچھار میں اڑ ڈالا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان گنت لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اس حکومت نے، اور جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر لیا، لیکن اس دفعہ یہ سروں کا سمندر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انہیں نظر آئے گا راولپنڈی سے فیض آباد سروں کا سمندر۔ دین نہ پہلے کبھی کسی کے روکنے سے رکا ہے، نہ اب کسی کے روکنے سے رکے گا۔ وہ کارکنان جن کے حوصلے بلند ہیں، کئیوں کے والدین کو گرفتار کیا، کئیوں کے بھائیوں کو گرفتار کیا، کئیوں کے دوستوں کو گرفتار کیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس کے باوجود ہمیں تو کھیلنے کا مزہ ہی ان حالات میں آتا ہے۔ تمہاری بھول ہے کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں گے۔ تم جانتے ہی نہیں ہو حضور کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کا مزہ کتنا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی فیض آباد میں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی لیاقت باغ میں۔ آداب عرض ہے۔ اب آپ کو بتا دیا جاتا ہے ایک مرضی جماعت کی طرف سے انتظار مطلب ہے نردیش نعرہ لگا دینا ہے اپنے اپنے دکانوں کو بند رکھیں اور زبان کو کھولتا دیں۔ احمد شفیع کی صورت میں بھائیوں کو چھین دیا جا سکتا ہے۔ محمد احمد کو یقینی بنائیں اور دیگر سب قانونی کارروائیوں پر لے جائی جائے گی۔ اپنے اپنی دکانوں کو بند رکھیں اور زبان کو کھولتا دیں۔ سارے صاحب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی دکانیں بند رکھیں اور زبان کو کھولتا دیں۔ احمد شفیع کی صورت میں بھائیوں کو چھین دیا جا سکتا ہے۔ کراچی سے کل ناموس رسالت مارچ کے لیے نکلے تھے اور پنجاب پولیس نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے ہمیں اریسٹ کر لیا ہے خانے وال میں، اور ہم لوگ لاک اپ میں آ گئے ہیں، لیکن حوصلے بہت بلند ہیں۔ انشاءاللہ جو ہماری اس آواز کو سن رہا ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ناموس رسالت مارچ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ دیکھیے اس وقت آپ سب جانتے ہیں، سننے والے سامعین سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کراچی کے آنے والے عاشقان رسول جو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ میں شرکت کے لیے 15 نومبر کی جو عظیم الشان کال دی ہے امیر المجاہدین دامت برکاتہ العالیہ نے، اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ خانے وال ریلوے اسٹیشن پر جو ہے ایک بڑی تعداد میں بھاری نفری نے ٹرین کو مکمل طور پر گھیر کر انہیں گرفتار کیا۔ یہ سب ہم گرفتار ہو چکے ہیں، مگر سننے والوں ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ آپ نکلو، آپ ہر جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہر مسلمان پاکستانی شہری سے میری درخواست ہے آپ نکلو، امیر المجاہدین کے دست و بازو بنو اور لیاقت باغ پہنچو۔ لیاقت باغ پہنچ کر اپنے اس عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت مارچ کو کامیاب بناؤ۔ آپ نے بنانا ہے، ہم سے جہاں تک ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ آخری دم تک ہم اپنی تحریک کے لیے اپنے پیارے محترم محبوب قائد کے سنگ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مشن بڑا مقدس ہے، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمارا مال، جان، آل، اولاد، وقت سب کچھ قربان ہے۔ بس نکلو، اٹھو اور لیاقت باغ پہنچو۔ فیض آباد سجا دیں گے انشاءاللہ، فیض آباد سجے گا انشاءاللہ، فیض آباد سجے گا انشاءاللہ، اور میرے قائد کا جو مشن ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آقا تیری شان کی خاطر لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیازی، تو کیا سمجھتا تھا کہ ہمارے کارکنوں کو ہراساں کر کے، ہمارے کارکنوں کو گرفتاریاں کر کے، گھروں کے اوپر چھاپے مار کے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے، پورا اسلام آباد، راولپنڈی لاک ڈاؤن، ہر طرح سے پورے ٹرانسپورٹ بند کر کے، پنڈی کی ٹکٹیں بند کر کے، کیا تیرا ارادہ تھا کہ تو عاشقان رسول کو روک سکتے ہو؟
ये तुम्हारी गलत फहमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में आशिकान रसूल जो हैं रावलपिंडी में मौजूद हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद सरकार का मिलाद जो है रावलपिंडी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मिलाद जो है सरकार की नमूस रसालत का मार्च वो अमीरुल मुजाहिदीन की क़यादत में शुरू हो जाएगा। और कराची वालों, आपने जो हक़ अदा किया और जो खानेवाल में आपको इन यज़ीदी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तारी इस वजह से की कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जा रहे थे। आप इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, आपकी अज़मतों को भी सलाम, आपका हक़ अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल वालों ने अदा कर दिया। जितने लोग आप लोगों को यज़ीदी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया उससे बहुत बड़ा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह रात खानेवाल से रवाना हुआ और खैर आफियत के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह वो रावलपिंडी पहुंच चुका है। और इंशाअल्लाह आज जो है, आज का जो दिन तारीख के अंदर रकम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे बना था और ग़ुलामान मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह आज अपनी ग़ुलामी का पूरा हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चैलेंज शुरू हो गई है। ये फ्रांस के जो गद्दार हैं उनके नबूवत रसालत की कौम नली पे इन यज़ीदियों ने अटैक कर दिया। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, आज गारे मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह सबने नबूवत मुझसे रसालत के ये पुराने किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनकी बात सबके खैर करे। जुल्म के इस निज़ाम को जो लोग यहाँ के इनकार हैं उनकी अज़मतों को सलाम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। चैलेंज शुरू हो गई है। ये फ्रांस के जो गद्दार हैं उनके नबूवत मुझसे रसालत की कौम नली पे इन यज़ीदियों ने अटैक कर दिया। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, आज गारे मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह सबने नबूवत मुझसे रसालत के ये पुराने किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनकी बात सबके खैर करे। जुल्म के इस निज़ाम को जो लोग यहाँ के इनकार हैं उनकी अज़मतों को सलाम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। ये देखिए मैच है, बहुत बड़ा शामिल हो रहा है नागी तरफ, बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, बहुत बड़ा ये भी दो काफी मिले हैं, 10 बॉल दो काफी मिले हैं। चलो 14
محمد فقیر نامی علی سردار قربان محمد فقیر نامی علی سردار قربان یا پیاری شمتر کے حسین زیبا رخسار قربان اور ساتھ میں ہزار تخور اگر کروں کا شرف محمد امین ربا اللہ پر ہزار وار قربان یہ جو آپ کے دل میں اسلام کے ساتھ بھی جو نظر آ رہا ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے جو بات نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے میں سے اچانک رسول کے بعد میں جملے کی بات ہے ہمارے رسول کے بعد اور اس کے بعد میں خدا مسائل لوگ محمد میں اپنے مصطفی کریم کا نام لے گا تین بار فرمائے گا محمد 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 حقیقت میں اس کی تسلی ہے جو باتیں سے دل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو بارے میں پوچھا جائے گا کریم کے بارے میں تین مرتبہ جواب دیں گے انہیں سرکار کا نام مبارک لیں گے صرف اسی وجہ سے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیک لبیک رسول اللہ خیر بوس نواز نواز ماشاءاللہ تمام لائق بات چکی ہے لائق بات ہے ماشاءاللہ وہ تمام جو بھی رسول ہیں جو سادہ یہاں کا کچھ نہیں کوشش میں ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت عمل ہے دل دل کے ماشاءاللہ حضور پاک کے لیے آج نہیں پہنچائیں گے جو آپ کی کے لیے ماشاءاللہ بہت عمل ہے آپ نے آپ کو جو سننا اس میں پڑھنے والی تو سے آتے ہیں میرا نام حاجت ہے جب آپ پوچھتے ہیں کون آج نہیں سے اس میں نام سنائے یہ نام لے گا اس میں اپنا حاضری رضا میں میں تمام ذمہ داران حلقہ پی پی ٹی سے اور کارکنان سے مخاطب ہوں کیونکہ ہم الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے ہم فیض آباد پہنچ چکے ہیں لیاقت باغ الحمدللہ ہم قبلہ امیر المجاہدین کی کال پر انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اور میرا سب سے پوری امت سے سوال ہے کہ جو نعرہ لگاتے رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ موت کب قبول ہوگی وہ اسی وقت ہوگی لیاقت باغ میں ہوگی انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین کی کال پر ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدا بھی دیں گے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا کے ساتھ ہم قربانی ہر قسم کی دیں گے یہ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ ناموس رسالت پر ڈاکہ مار کے یہ بچ جائیں گے ہرگز نہیں یہ جتنی دل تکلیفیں دے لیں الحمدللہ ہم ہر تکلیف توڑ کے نظام مصطفیٰ اور انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان سب لیاقت باغ پہنچے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ زندہ باد زندہ باد پہ رکے ہوئے ہیں اور اس سفیر کے ملک بدر ہونے تک ہم یہیں پہ رہیں گے ان کا یہی کہنا ہے اور اگر میں یہاں پر کراؤڈ کی بات کروں تو کراؤڈ جو لیاقت باغ سے چلا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں موجود تھے اور ایک اور ساتھ ساتھ میں بات بتاتا چلوں کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ابھی تک اس کراؤڈ میں اور اس مارچ میں ابھی تک وہ نہیں شرکت نہیں کی انہوں نے اس کے باوجود اگر لوگوں کی یہاں پہ میں بات کروں تو کثیر تعداد میں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عشاقان رسول یہاں پر موجود ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جب تک فرانس کے سفیر کو باہر نہیں بھیجا جاتا تب تک ہم یہیں پر موجود ہیں اور اس کے ملک بدر ہونے تک ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. موسم کی شدت کی بات کروں تو انتہائی ٹھنڈ ہے یہاں. Oi, calma, oi.
माशाल्लाह जी उम्मत के काफिलों के मजदूर माशाल्लाह कसीर तादाद कैमरे की आंख नहीं पहुंचती माशाल्लाह माधोपुर के तरीके के कार्यक्रम में लेकिन छोड़ छोड़ बड़ा माशाल्लाह ये रोड एक साइड है जी वैसे ये देखिए एक बहुत बड़ा ताला नौजवानों के सामने आ गया है। ये भी पिंडी हो गया बहुत ज्यादा तराने लोग भी इकट्ठा हो गए हैं नकबार चले जा रहे हैं। देखो आवाम का सुंदर जो कमेटी चौक के ऊपर लोग खड़े हैं ना अपना मरीन चौक के ऊपर मरीन चौक वालों को कहिए आंसू गैस करें ही चलेंगे साडी जान अलामा आसम नज़ीर साहब सही वीडियो बनाओ ठीक है ना हो जाएंगे काफी वलह के हशर तक ये लियाकत बाग से चलने वाले इंशाअल्लाह फैलाबाद तक बढ़ता ही जाएगा। इससे जोश इनका ज्यादा होता जाएगा। वही बात जो किबला अमीर अल मुजाहिदीन फरमाते हैं, जब बात हजूर की इज्जत की आ जाए हमारे गले में रस्सियां डाल के घसीटना शुरू करो। अगर हमारे बदन के पुर्जे बिखरना शुरू हो जाए, टुकड़े टुकड़े के रोड पे बिखरना शुरू हो जाए, हमारा इश्क कहेगा थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, क्योंकि सब फना हो जाएंगे काफी वलह के हशर तक। नात हजरत आसमानों पर सुखन रहे, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लोग कहते हैं जनाब ये अवाम आती है खुद का है, आओ देखो सफेद दाढ़ी में ये नूरानी चेहरा है, मेरी जमात का फर्क
दोस्त आला भी तुम्हें यहाँ मिले जाओ। आओ देखो जनाब आला सैयद ज़हीर हसन शाह रसूल जेल काट के पीसीओ मुकदमात में आप भी पेशियां भुगतने के बावजूद फिर भी आपके रसूलुल्लाह की नमूज के लिए यहाँ खड़े होके आपको बता रहे हैं कि बयानिया वही है जो बाबा जी देते हैं। ये सैयद किफायत अली काफी ने दिया था कि सब फना हो जाएंगे काफी वाले के आंखें खोलो। मेरी केपीके की क़यादत डॉक्टर शफी कमीनी साहब भी इधर नजर आएंगे, सैयद मोहम्मद अली साहब भी इधर नजर आएंगे। वो जिस सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूलल्लाह। सरकार की हुर्मत पे आज बात आई है, मग़मूम आसमां से दुखी कायनात है, नापाक इस अमल से बेचैन खुदाई, दिन होते हुए दिन न लगे लगती रात है। हर शादी में रसूल के सर फोड़ आएंगे, खाके बनाने वाले तुझे हम मिटाएंगे। ये देखें कि जी उनके काम सुबह फजर की नमाज के टाइम पहले ही एक घंटा पहले ही उन्होंने चैलेंज शुरू कर दिया है। लानत है। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। खाके बनाने वालों को हम खाक में मिला देंगे, खाके बनाने वालों को हम खाक में मिला देंगे। गरीबात ना ये आए तो, गरीबात ना ये आए तो मिट्टी में मिला देंगे। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जो बदला देना का वो मर जाए तो अच्छा है, जो बदला लेना आका का वो मर जाए तो अच्छा है। इन बुज़दिल अमन पसंदों को, इन बुज़दिल अमन पसंदों को फतवा ये सुना देगा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जब तख्त पे दीन आएगा नामों से नबी पे इंशाअल्लाह, जब तख्त पे दीन आएगा नामों से नबी पे इंशाअल्लाह। हालैंड के इन गुस्ताखों को, हालैंड
सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नीचे पहुंचे। कारकुनान अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नीचे पहुंचे। एयरपोर्ट की तरफ कारकुनान अपने दोस्तों की मदद करने के लिए दोस्तों की मदद करें। तमाम दोस्तों की मदद करें। दोस्ती संभालें। दोस्तियों पर पहुंचे। का इस्तीफा दिया गया था। अब इमरान हुकूमत की कान खोलकर सुन ले। अगर अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहते हो तो इंसानों की तरह फराज के सफीर को मुल्क बदर करो, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारी अयाशियों के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तुम्हारी बदमाशियों के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तुम्हारी मक्कारियों के लिए नहीं बना। पाकिस्तान बना है तो मदीने वाले के नाम पर बना है, के नाम पर बना है। और ये जो फायरिंग कर रहे हो, पहले शेलिंग की थी, अब तुम जो फायरिंग कर रहे हो इससे बाज आ जाओ। अगर यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार इमरान की पूरी हुकूमत होगी, इमरान की पूरी हुकूमत होगी। हमारा ये पुरअमन मार्च है, इसे पुरअमन रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारे गुलाम लब्बैक का नारा लगाते हुए आए। आज जो अशकाल रसूल उलमाए किराम फैज़ाबाद की सरज़मीन पर बैठे हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें फतह अता फरमा। और या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आका की नमूद की खातिर दिन रात उधर काट रहे हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी गैबी मदद अता फरमा। और या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो फैज़ाबाद पहुंच नहीं सके, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें जल्द से जल्द फैज़ाबाद पहुंचने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। और या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो फराज के कुत्ते ने हमारे आका व मौला की खत्म नबूवत पर हमला किया है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम अशकाल रसूल के सदक़े से या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे निस्त और नबूद फरमा, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे निस्त और नबूद फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया और गाजी साहब के नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मनसब नबियत मनसब नबियत मनसब नबियत मनसब नबियत मनसब नबियत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के मरी रोड पर, एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से चंद कदम के फासले पर थोड़ा सी आगे जाकर और तहरीक लब्बैक का धरना जारी है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से जब आगे आप फैज़ाबाद की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो फैज़ाबाद के मकाम पर धरना जो है वो जारी है। लेकिन चौधरी निसार अली खान की जो रिहाइश है, चौधरी निसार अली खान के घर के सामने जो आखिरी बैरियर है पुलिस का, जहां पर पुलिस मौजूद है, वहां से आगे किसी को भी जाने से रोक दिया गया है। यहां तक कि मीडिया को भी आगे जाने से रोक दिया गया है। जब वहां पर मौजूद पुलिस के अफसरान से हमारी बात हुई कि आप मीडिया को आगे जो है वो क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उनका कहना यह है कि क्योंकि मीडिया ये चला ही नहीं रहा, मीडिया पर इस धरने को कवरेज की इजाज़त ही नहीं है, मीडिया को ये दिखाने की इजाज़त ही नहीं है, तो फिर इसलिए जो है वो कवरेज भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि क्योंकि जो है वो आगे सूरत हाल किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है, गंभीर हो सकती है, कोई तसादुम की सूरत हाल हो सकती है, कोई ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, तो इसलिए मीडिया को आगे जाने से रोक दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितनी पुलिस मौजूद थी जो हमने देखी है, उससे कम अज़ कम जो है वो ऑपरेशन तो नहीं हो सकता जितनी पुलिस जो हम देख कर रहे हैं जो मौजूद है। इससे अगली जो चीज़ है वो ये है कि अब से तकरीबन
2 घंटे पहले 2 घंटे मुसलसल जो है वो बहुत तेज बारिश होती रही। जब हम यहाँ पर आए 11:15 बजे 11:30 बजे तो उस वक्त भी यहाँ पर बहुत तेज बहुत शदीद बारिश थी, लेकिन अब बारिश जो है इस वक्त कम अज कम रुक चुकी है। बादल मौजूद हैं लेकिन इस वक्त बारिश रुक चुकी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है और फिर वो भी रुक जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बैरियर तो इस रोड पे लगे हुए हैं, लेकिन इस रोड पे या लेफ्ट साइड वाले रोड पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। वैसे तो मेन जो ट्रैफिक है उसको जहाँ पे मैं खड़े होकर ये वीडियो कर रहा हूँ इसके अपोजिट साइड जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर इसको बंद किया हुआ है, लेकिन ये वो चंद एक गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल आ जा रहे हैं जो ऐसे लोगों की हैं, जो ऐसे लोग हैं उनका शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, उनको इसलिए आने जाने दिया जाता है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ करीबी गलियों में उनकी रिहाइश है, तो क्योंकि उनकी रिहाइश है तो इसलिए इनको आने जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी जब हम यहाँ पर मौजूद थे ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जो रावलपिंडी से आए और उनके पास कुछ बिस्तर थे, और जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कैमरे पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो धरने में जो मुजाहिरीन हैं उनको ये बिस्तर पहुंचाना चाहते हैं, उनको ये सामान पहुंचाना चाहते हैं, और वो सपोर्टर थे जो कहते हैं कि हम धरने में तो नहीं आ सके, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनका जो कॉज है वो ठीक है और हम इसलिए इन धरना मुजाहिरीन को जो है वो बिस्तर और ये चीज़ें देने आए हैं ताकि वो रात यहाँ पर बसर कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, पहले नादिर बलोच साहब भी मुसलसल चीज़ों से आगाह करते रहे हैं और ये कि इस वक्त ये जो फैज़ाबाद से आगे बताया जा रहा है कि फैज़ाबाद से आगे जो है वो 4 जगहों के ऊपर 0 पॉइंट तक जो है वो रुकावटें लगाई गई हैं ताकि ये मुजाहिरीन किसी तौर पर इस्लामाबाद में आगे ना जा सकें। जो रेड जोन का एरिया है उसमें रेंजर्स और पुलिस अलर्ट है और कुछ देर पहले कुछ मजीद पुलिस की नफरी रेंजर्स की नफरी वहाँ पर पहुंची है कि अगर किसी भी तरह से ये धरना मुजाहिरीन तमाम रुकावटें क्रॉस करते हुए रेड जोन के करीब पहुंच भी जाते हैं तो ये रेड जोन में दाखिल ना हो पाएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जो मौजूद है वहाँ पर, और ये भी हमने देखा कि पिछले 3 दिन मैसिव क्रैकडाउन किया गया पूरे पाकिस्तान में और खासतौर पर पंजाब में हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनका तहरीक लब्बैक से कोई तल्लुक नहीं था, लेकिन नंबर गेम पूरी करने के लिए, कारकर्दगी अपनी दिखाने के लिए कि हमने देखे इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनका तहरीक लब्बैक से कोई तल्लुक नहीं था। लेकिन और ये बड़ी बहस ज़्यादती की बात है, कुछ स्टोरीज हैं मेरे पास, उन पर तफसील से फिर बात करेंगे कि कैसे कैसे लोगों को किस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो यहाँ पर आगे पुलिस की जो नफरी मौजूद है उनका ये भी कहना था कि अब जो भी लोग धरने से वापस आएंगे सिर्फ उनको गुजरने दिया जाएगा, लेकिन अगर धरने में शिरकत के लिए कोई आएगा तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धरने के जो मुजाहिरीन हैं उनका एक ही मुतालबा, उनके 2 मुतालबात हैं बड़े। एक मुतालबा उनका यह है कि फ्रांस की एम्बेसी जो है फ्रांस का सफारत खाना उसको बंद किया जाए, फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, और वो ये कहते हैं कि फ्रांस की एम्बेसी के सामने जाकर वो एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ये कहती है, इंटेलिजेंस इदारे ये कहते हैं कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अगर ये धरना मुजाहिरीन आगे गए तो ये आगे अगर एम्बेसी तक पहुंच गए तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एहतजाज करेंगे, बल्कि वहाँ पर एम्बेसी को जो है वो आग भी लगा दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हॉस्पिटल जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के उनको मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि वो बेड जो है वो खाली रखें, इमरजेंसी जो उनके वार्ड्स हैं वहाँ तमाम चीज़ें तैयार रखें कि अगर यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से हॉस्पिटल जो है वो निपट सकें। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो इस वक्त तक जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं ये बहुत शेलिंग बर्दाश्त करके पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा मरी रोड पर शेलिंग होती रही, दिन भर तसादुम होता रहा, बहुत सी वीडियोस आप देख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी वायरल की गई हैं जिनका आज के धरने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पुरानी वीडियोस हैं जिनको वायरल किया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ कि सोशल मीडिया पर जो हमने देखा वो नून लीग के हामी एंकर्स, खवातीन हैं, मर्द हैं, कुछ एंकर्स, वो इस धरने को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो इस धरने में मौजूद जो लोग हैं उनके कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ धरना है तो वो इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये वही नून लीग के एंकर्स हैं, हामी एंकर्स हैं, जो जब नून लीग के दौर में ये खादिम रिजवी साहब आए थे तो खादिम रिजवी साहब के खिलाफ उन्होंने बहुत सख्त ट्वीट किए थे, इनकी जमात के खिलाफ बहुत सख्त ट्वीट किए थे, इदारों पे बहुत दबाव डाला था कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इन लोगों को तशद्दुद करके यहाँ से क्यों नहीं भगाया जा रहा। उस वक्त वो कहते थे इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, लाठी चार्ज किया जाए और इनको यहाँ से किसी भी तौर पर जो है वो हटाया जाए। लेकिन आज वही लोग
मुकम्मल तौर पे इस धरने को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इनके लिए ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ मैंने बहुत दिलचस्प देखी और वो ये थी कि बाज़ हुकूमत के जो मुखालफिन हैं, जो फ़ौज के मुखालफिन हैं, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये जो धरना है इसके पीछे फ़ौज है, ताकि तमाम लोगों की, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो इस धरने की तरफ हो और गिलगित में जो है वो धांधली करके और PTI को जितवा दिया जाए। लेकिन उन लोगों को क्या कहा जाए, उनकी इतनी अकल काम नहीं करती कि अगर ऐसा होता तो इस धरने की कवरेज जो है उससे ना रोका जाता। इसकी कवरेज चैनल पर हो रही होती है और भरपूर कवरेज जो है इस चैनल की इस धरने की हो रही होती, लेकिन इस धरने की जो है वो किसी भी तरह की कोई कवरेज नहीं की जा रही। मैंने तो कोई एक टिकर भी नहीं देखा। इसके अलावा मीडिया ब्लैकआउट है और तकरीबन जो पॉइंट्स जो अब तक मैंने यहाँ पर नोट किए वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो थोड़ी देर के लिए जो है वो सिग्नल्स आए हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सिग्नल जो है वो मोबाइल नेटवर्क जो है वो यहाँ से पीछे जो है वो ऑन कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे पुलिस ने मुकम्मल तौर पर मीडिया को भी जाने से रोक दिया है, तो अभी हम आपको इसलिए वहाँ की सूरत हाल नहीं बता सकते कि इस वक्त धरने के मकाम के ऊपर जो है वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से गए थे तो उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने ऊपर से देखा, हज़ार हा लोग थे, काफ़ी पुरजोश लोग थे, बहुत पुरज़म थे। और जब वो लियाकत बाग से यहाँ पर फैज़ाबाद तक पहुँचे हैं तो हज़ार हा कारकुनान थे और बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज और शेलिंग हुआ, उस शेलिंग को बर्दाश्त करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ से आगे जब हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस की मौजूद थी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्रिजनर वैन्स जो हैं वो भी जो है वो आगे, प्रिजनर वैन्स जो हैं वो आगे मौजूद हैं। और इस वक्त भी प्रिजनर वैन्स जो हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गुजर कर गई हैं, आगे भी काफ़ी प्रिजनर वैन्स भी मौजूद हैं, शेलिंग के लिए जो गाड़ियाँ वो भी मौजूद हैं। तो ये अब तक की तफसीलात हैं। और बाकी जो इससे पहले वीडियोज़ हैं, मुगीस अली साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं, बल्कि मुगीस साहब अगर यहाँ पर हैं तो मैं आपको दिखाऊँ कि मुगीस साहब क्योंकि बारिश हो रही थी तो कैसे जो है वो बारिश से निमटने के लिए किस तरह की तैयारी जो है ये करके आए। और कुछ देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम, तो कुछ देर पहले जो है ये आए थे मुगीस अली साहब और इन्होंने यहाँ पर आके यहाँ से व्लॉग भी किया था, कुछ मनाजिर भी दिखाए थे। और अभी मुगीस साहब ने कुछ और रास्तों से होते हुए इस्लामाबाद जाने, तो मैं क्योंकि इस रावलपिंडी वाली साइड पे मौजूद हूँ, मुगीस साहब जब जाएंगे इस्लामाबाद वाली साइड पे तो मुगीस अली साहब को कहेंगे कि ये उधर से कुछ अपडेट लेकर अगर वहाँ से आने दिया जाए किसी तरह से तो ये अपडेट कर सकें। लेकिन अब तक ये सूरत हाल है। कुछ जो इदारे हैं जो इस वक्त नज़र रखे हुए हैं, कुछ देर बाद उनसे भी तफसीलात लेकर और आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए ये सूरत हाल है। और इसके बाद अभी मैं वीडियोज़ अटैच कर रहा हूँ, उन वीडियोज़ में आप आगे की सूरत हाल देख सकेंगे कि जब हम यहाँ से आगे गए थे तो क्या मनाजिर थे, किस तरह से जो है वो सूरत हाल थी, वो आप देख सकेंगे। अब तक की ये डेवलपमेंट है, ये सूरत हाल है। और जो मैंने आपको बताया कि मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ कि जब आप फैज़ाबाद से रावलपिंडी की तरफ आते हैं, शमशाबाद की तरफ आते हैं, तो आगे एक जो है वो यू टर्न आता है, जिस यू टर्न से आप मुड़कर और आप दोबारा जो है वो पिछली तरफ आप जा सकते हैं, फैज़ाबाद की तरफ, वापस इस्लामाबाद की तरफ। ये अब तक की तफसीलात हैं, सूरत हाल है जो मैंने आपको आगाह किया है। आगे आप वो वीडियोस देखें जो कुछ देर पहले मैंने बनाई थी। बाकी जो तफसीलात होंगी कुछ देर बाद वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम मंसूर कामी नासरू, अल्लाह। ये आप देख सकते हैं मरी रोड पर कि कितनी जो है वो इस वक्त शदीद बारिश हो रही है और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 घंटों से इसी तरह ही बारिश जो है वो तेज़ बारिश जारी है। और ये जो आप मकाम देख रहे हैं, ये मकाम है फैज़ाबाद से जब आप रावलपिंडी की तरफ आते हैं शमशाबाद की तरफ, तो ये वो एरिया है। और इससे बहुत पीछे बैरियर लगा के और रास्ते जो हैं वो रोके गए थे और पैदल जो है अभी तक आने दिया जा रहा है। और पैदल आने वालों को अभी तक तो कहीं भी नहीं रोका गया। ये आप देख रहे हैं कि ये पुलिस की गाड़ियां ज़रूर ठहरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियां। और 9 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस की रुकी हुई हैं, लेकिन किसी भी जगह पे रोका नहीं गया कि आप आगे नहीं जा सकते। ये आपको कुछ पैदल ख़वातीन और बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो या तो यहाँ के रिहायशी हैं और वापस आ रहे हैं पैदल, या दूसरा इसका जो पहलू हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्योंकि ये अब हम फैज़ाबाद जो अड्डा है, हम अड्डे के करीब पहुँच गए हैं, तो ये हो सकता है कि ये वो लोग हों जो अड्डे पे उतरे हों और अड्डे से उतर कर आ रहे हों। ये आगे फिर पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस के एहलकार जो हैं वो रुके हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो शेलिंग वाली गाड़ी भी आप देख रहे हैं
कि वो भी ठहरी है, पुलिस के जवान भी ठहरे हुए हैं और यहाँ पर प्रिजनर वैन भी दूसरी साइड पर रुकी हुई है जिनमें कैदियों को जो है पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने भी ऐलान फरमाया है। अब मैं भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ग़यूर मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि अपनी अपनी मसाजिद में भी ऐलानात कराएँ और काफ़िलों की शक्ल के अंदर आप जल्दी फैज़ाबाद पुल पर पहुँचे। अल्लाह ताला हम साहब का हामी और नासिर हो। कल सुबह आए थे अशास बशास, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुजूर के गुलाम उसी तरह अशास बशास मौजूद है, उसी तरह अशास बशास मौजूद है। तो पिंडी वालों तुम भी निकलो, इस्लामाबाद वालों तुम भी निकलो, पूरे पाकिस्तान से काफिले लेकर यहाँ फैजाबाद पहुंचो। वरना याद रखना कि अगर आज हम तो शहीद होने के लिए आए, शहीद होने के लिए है, लेकिन अगर हमें शहीद कर दिया जाता है, आप घरों में बैठे रहते हैं, तो मेरी ये बात याद रखना, ये मैं फैजाबाद पुल पे बात कर रहा हूँ कि ये सदियों तक तुम्हें नामूस रिसालत की बात नहीं करने देंगे। इनके जुल्म का यहाँ से अंदाजा लगा ले। इन्होंने कलमा पढ़ने वाली फोर्सेस और कलमा पढ़ने वाली अवाम को आमने सामने कर दिया है, तो इन्होंने मुल्क क्या चलाना है? ये तो हुजूर के गुलामों को ही आपस में लड़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अहबाब बिलखसूस हमारी बात पर तवज्जो दें। तहरीक लब्बैक के रसूलुल्लाह का काफिला फैज़ाबाद पहुंच चुका है और पूरी उम्मत का कर्जा उतारने के लिए, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम का कर्जा उतारने के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर रखा है, जो हमारा आइनी हक है और बैसीत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील भी करें और मुतालबा भी करें, जिस मुतालबे के लिए हम इस वक्त फैज़ाबाद में हैं। और फैज़ाबाद जितने कारकुनान ओहदेदारान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जुमला आशिकान रसूल इस वक्त मौजूद हैं, उन पर हर तरफ से पुलिस ने अल्लाह बोल दिया है। आप हज़रात हमारी मदद के लिए पहुँचे। हमारा ज़ाती मुतालबा नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का मसला है। आपका भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना हमारा फ़र्ज़ है। इस वक्त हम फैज़ाबाद पुल पर मौजूद हैं। आप हमारी तरफ अपना काफ़िला रवां दवां करें और हमारी मदद के लिए पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँचें। जितना हमारा फ़र्ज़ है, जो कलमा हमने पढ़ रखा है वही कलमा आपने पढ़ा हुआ है। जितना हमारा फ़र्ज़ है उतना ही आपका फ़र्ज़ है। मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन पीछे हम आगे पहुंच जाएंगे, इधर से कमांड करें। पीर साहब हुक्म करे, हम लड़के आगे जाए। पीर साहब किधर जाओगे? आगे फोर्स आगे आ जाए। पीर साहब जी ये 6:38 की वीडियो है और आप देख सकते हैं सब भाई अभी तक शेयरिंग जारी है। 4:30 बजे की शेयरिंग शुरू की गई। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं अभी 7 बज रहे हैं और अभी तक पुलिस की जानिब से शेयरिंग जारी है और पुलिस की जानिब से सुबह शदीद किस्म शेयरिंग जारी है। जी देखें, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह व अलैहि सहाबिका नबिया। ये कुत्ती के बच्चे सामने खड़े हुए देखें, ये शेयरिंग जारी है शदीद किस्म से। पत्थर आया बड़ी मुश्किल से बचाऊँगा, बहुत मुश्किल से बचाऊँगा। शेयरिंग जारी है, बहुत शदीद शेयरिंग जारी है, बहुत शदीद शेयरिंग। ये पानी मारा जा रहा है, देखें वाटर कैनन से पानी मारा जा रहा है। ये देखें पानी मारा जा रहा है वाटर कैनन से। शेयरिंग जारी है शदीद किस्म की, पुलिस की गुंडागर्दी है, शेयरिंग जारी है, बेहतरीन किस्म शेयरिंग जारी है। ये पानी मारा जा रहा है, शेयरिंग जारी है। रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गुलामों से गुजारिश की जाती है कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ कायद मिल्लत इस्लामिया की कॉल पर अज़ीम शान नामूस रिसालत मार्च निकाला गया। इस वक्त तमाम गुलामान मुस्तफ़ा पूरे ईमानी जज्बों के साथ फैज़ाबाद पुल पे मौजूद हैं। फ़्रांस की हामी हुकूमत और फ़्रांस के चेलों ने, यजीदियों ने सुबह के वक्त तकरीबन 4 बजे के आसपास शदीद शेलिंग की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ग़ुलामों ने डट के मुकाबला किया है।
तमाम यजीदी और नामूस रिसालत की गद्दार पीछे जा चुके हैं, अपने हौसलों को बुलंद रखें और खुसूसन गिरदोनवा के जितने गुलामान मुस्तफ़ा हैं वो जल्द अज जल्द काफिलों की सूरत में फैज़ाबाद पहुँचें, ताकि क़यादत जो हमें हुक्म दे इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है कि हमारे इमाम ने फरमा दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए हुजूर के गुलामों, आज ये मौका है, ये हमारा इम्तिहान है, हमारी आजमाइश है। अल्लाह अपने हबीब की इज़्ज़त की हिफाजत करने वाला खुद है, लेकिन ये हमारे ईमान का इम्तिहान है कि इस वक्त वो यजीदी हुकूमत, ये फ्रांस के हामी जिसने हमारे आका और मौला की शान में गुस्ताखी की, उसका लईन सफ़ीर यहाँ मौजूद है, ये उसके खिलाफ एक बात नहीं कर रहे, ये उसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा रहे, लेकिन हुजूर के गुलामों पर फजर के वक्त, सहरी के वक्त शदीद बदतरीन शेलिंग की गई। कल रास्ते में आते हुए भी शेलिंग की गई। इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम कायद मिल्लत इस्लामिया की क़यादत में न झुकने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये अपनी मंजिल पर पहुँच के दम लेंगे और अपने मकसद में रब्बे करीम के फजल से हुजूर की निगाह से कामयाब होंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलमान भाई ये देख लो 4:30 बजे तो शैलिंग शुरू है तो अजे तक शैलिंग की जान रही है तो 6:30 हो चुके हैं, ठीक है, मुसलसल शैलिंग की जा रही है। इस साइड का दोस्ती था तो ना कई किलोमीटर के अंदर जरा शैलिंग का धुआं जरा मौजूद है। आशिकान रसूल मुसलसल 2 घंटे से ज़्यादा पुलिस की शेलिंग का मुकाबला करते हुए अभी भी पुलिस की जानिब से ये सामने शेलिंग की जा रही है और उसका धुआं आपको जी नाज़रीन ये देख सकते हैं शेलिंग की वजह से तहरीकी भाइयों को तबीयत कैसी हो चुकी है और तकरीबन सब भाई जो है इस वक्त कोई वोमिटिंग कर रहा है, कुछ खांस रहे हैं और इतनी ख़तरनाक हद तक शेलिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं सारे मनाज़र। हुकूमती बगैरती के इंतहार और आशिकान रसूल को नमाज भी अदा नहीं करने दी गई। जैसे नमाज का ऐलान हुआ कि सब लोग नमाज पढ़ लें, उसी वक्त शेलिंग जारी कर दी गई दोबारा से।